اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ناظرین اکرام، جہاں دشمنان اہل بیت گستاخان شہزادی کونین ملعون اشرف جلالی جیسے اپنی نجاست اور غلاظتوں کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں پر عاشقان اہل بیت اور عاشقان شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے جس طرح بھی ہو سکے، جس زاویے سے بھی ہو سکے، شہزادی کی عظمت اور شہزادی کے فضائل بیان کریں، تاکہ دنیا سمجھ تو سکے کہ جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، اگر اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ پھر شہزادی پر الزام نہیں ہے، وہ پھر قرآن پر الزام ہے، وہ پھر اللہ پر الزام ہے، کیونکہ آیہ تطہیر بھی تو اپنی نگاہیں جمائے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایسے گمراہ لوگوں کی بات مانے گی دنیا یا پھر قرآن کی بات مانے گی؟ قرآن تو طہارت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن تو پاکیزگی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ کی وہ شان ہے اور وہ عظمت ہے۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ برائی سے جدا اور الگ ہیں۔ یہ جملہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر دلیل ہے، کیونکہ آپ کا معصوم ہونا ثابت ہے۔ جہاں آپ ہی کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ مخلوق سے جدا تھیں۔ یہ تفسیر آپ کے عرفان کی منزل کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل میں سوائے خدا کے اور کسی کا تصور نہیں تھا، اور ہر وقت آپ کا دل مشغول عبادت حق تھا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معرفت سے قاصر ہیں۔ یہ تفسیر آپ کے اسی مرتبے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ کو رسول اکرم نے ام ابیہا کہا ہے۔ آپ کو فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ کی محبت سے الگ کیا گیا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس کے پاس محبت اہل بیت کی سعادت نہیں ہوگی اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس فاطمہ کی توصیف کیسے کی جا سکتی ہے کہ جب حضرت زہرا
हुजूर अकरम के पास जाती हैं या हुजूर अकरम फ़ातिमा ज़हरा के पास आते हैं तो पैगंबर अकरम इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं और हाथ के और पेशानी के बोसे लेते हैं, चूमते हैं और कहते हैं मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, और फिर शहज़ादी को अपनी जगह बिठाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर करने का मुकाम है, फ़िक्र करने का मुकाम है, तदब्बुर करने का मुकाम है। वो शहज़ादी नबी करीम की इकलौती बेटी, उसी की शान में ये कुछ अशआर नाजरीन की बेहतरीन समातों की नज़र कर रहा हूँ। मिसरा है कि मुस्तफ़ा से पूछिए क्या फ़ातिमा की शान है। हम और आप क्या बयान करेंगे अज़मत फ़ातिमा। मुस्तफ़ा से पूछिए क्या फ़ातिमा की शान है। मतलब आपके हवाले, ऐ मुसलमानों पैगंबर का यही फरमान है, ऐ मुसलमानों पैगंबर का यही फरमान है, फ़ातिमा जुज़्वे रिसालत और मेरी जान है। ऐ मुसलमानों पैगंबर का यही फरमान है, फ़ातिमा जुज़्वे रिसालत और मेरी जान है। और मतलब सानी समात फरमाए, ये अक़ीदा है मेरा और ये मेरा ईमान है, ये अक़ीदा है मेरा और ये मेरा ईमान है। फ़ातिमा के दोस्तों पर खुल्द भी कुर्बान है, फ़ातिमा के दोस्तों पर खुल्द भी कुर्बान है। और इनकी ड्यूढ़ी पर नबी करते हैं झुक झुक कर सलाम, इनकी ड्यूढ़ी पर नबी करते हैं झुक झुक कर सलाम। आगो लकड़ी लाने वाला ये कोई शैतान है, इनकी ड्यूढ़ी पर नबी करते हैं झुक झुक कर सलाम। आगो लकड़ी लाने वाला ये कोई शैतान है। और शेर ख़ास तौर से आप समात फरमाएं कि सब मलक ज़हरा के नौकर, अज़मत ज़हरा तो देखें कि सब मलक ज़हरा के नौकर सब अली के हैं ग़ुलाम, सब मलक ज़हरा के नौकर सब अली के हैं ग़ुलाम। बन के दर्जी आने वाला खुल्द का रिज़वान है, सब मलक ज़हरा के नौकर सब अली के हैं ग़ुलाम। बन के दर्जी आने वाला खुल्द का रिज़वान है। और शेर देखें कि जिससे ले जाते हैं आकर फरिश्ते रोटियाँ, सब मलक ज़हरा के नौकर सब अली के हैं ग़ुलाम। बन के दर्जी आने वाला खुल्द का रिज़वान है कि जिससे आकर फरिश्ते, जिससे ले जाते हैं आकर फरिश्ते रोटियाँ, जिससे ले जाते हैं आकर फरिश्ते रोटियाँ। दहर में ऐसा फ़क़त ज़हरा का दस्तरख़ान है, दहर में ऐसा फ़क़त ज़हरा का दस्तरख़ान है। और ऐसी बेटी, ऐसी ज़ौजा, ऐसी माँ कोई नहीं, ऐसी बेटी, ऐसी ज़ौजा, ऐसी माँ कोई नहीं। सोच कर ज़हरा की अज़मत अक़्ल भी हैरान है, ऐसी बेटी, ऐसी ज़ौजा, ऐसी माँ कोई नहीं। सोच कर ज़हरा की अज़मत अक़्ल भी हैरान है। और लो सभी कुरान नातिक़ आ गए ज़ेरे किसा। ख़ास तौर से शेर समात फरमाए कि ऐसी बेटी, ऐसी ज़ौजा, ऐसी माँ कोई नहीं। सोच कर ज़हरा की अज़मत अक़्ल भी हैरान है। और लो सभी कुरान नातिक़ आ गए ज़ेरे किसा। चादर ज़हरा निराली शान का जुज़दान है, लो सभी कुरान नातिक़ आ गए ज़ेरे किसा। चादर ज़हरा निराली शान का जुज़दान है। और शेर समात फरमाएँ कि आप और हम क्या करेंगे। तज़मीन का शेर आपके हवाले ख़ास तौर से समात फरमाएँ कि आप और हम क्या करेंगे अज़मत ज़हरा बयां, मुस्तफ़ा से पूछिए क्या फ़ातिमा की शान है। आप और हम क्या करेंगे अज़मत ज़हरा बयां, मुस्तफ़ा से पूछिए क्या फ़ातिमा की शान है। और जल्द कर तामीर या रब मेरी आँखों को बहुत, जल्द कर तामीर या रब मेरी आँखों को बहुत, देखने का रोज़ा ज़हरा बड़ा अरमान है। जल्द कर तामीर या रब मेरी आँखों को बहुत, देखने का रोज़ा ज़हरा बड़ा अरमान है। और अब ये मक़ते का शेर समात फरमा लें, इसलिए भी प्यार है अपने वतन से, इसलिए भी प्यार है भारत से हमको ए वफ़ा, इसलिए भी प्यार है भारत से हमको ए वफ़ा। ख्वाहिश शब्बीर भी दुनिया में हिंदुस्तान है, इसलिए भी प्यार है भारत से हमको ए वफ़ा।
خواہش شبیر بھی دنیا میں ہندوستان ہے، مصطفیٰ سے پوچھئے کیا فاطمہ کی شان ہے، چادر زہرا نرالی شان کا جزدان ہے، دہر میں ایسا فقط زہرا کا دسترخوان ہے، سوچ کر زہرا کی عظمت عقل بھی حیران ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔